Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 7 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on arrangement which I've taken from previous year SimCats, and the set says Kipro Consulting arranged a total of 16 presentation on 10 days in the month of June. 4 Saturdays and 4 Sunday and July, first Saturday and first Sunday. On each of these 10 days, Kipro arranged a presentation on at least one of the following three agenda: finance, marketing, and HR. The only presentation that was arranged on Saturday, 3rd June, which was also the first presentation of the season, as well as 2nd July, which was also the last presentation of the season, was on HR. They arranged presentation on exactly one of these three agenda on exactly 5 days. On exactly 2 days, presentation were arranged on marketing and finance, but not on HR. The number of presentation arranged to marketing was more than that of HR, and at the same time, it was more than that of finance. The following facts are known about the presentation made on 10 days. Presentation on all the three agendas were arranged on 24 June. On 17 June, presentation on HR as well as finance were arranged. Presentation on marketing was not arranged in 11 June. Okay. HR presentation was arranged on 18 June also. Presentation on finance were never arranged on two consecutive calendar dates. एक बार questions पढ़ लेते हैं. On how many days Kipro Consulting arranged exactly two presentation? Question number 2, how many presentation were arranged on marketing in the given period of 10 days? Question number 3, on which of the following dates only one presentation was arranged and that to finance? Which of the following pair contains uh, which of the following pair contains dates only one presentation was arranged on that too on finance? Which of the following pair of date contain both date on which presentation of on finance was not arranged? Question number 5, which of the following best give the schedule of the presentation on 10 June? ठीक है. एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट का सेट जिसमें कि दो वेरिएबल की कहानी चल रही है. दो वेरिएबल यानी कि यहाँ पे डेज हैं, डेज के साथ साथ अपने को दूसरा वेरिएबल है एजेंडा. अपने को ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब डेज की बात करें तो क्या हो रहा है कि जून के महीने के 4 सैटरडे 4 संडे और जुलाई के महीने के 1 सैटरडे और संडे. तो जून के महीने के 4 सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक डेट अपने को दे दी गई है विच इज सैटरडे 3rd June. तो यानी कि इसके बाद क्या होगा 4th June संडे. उसके बाद क्या होगा 10th और 11th June सैटरडे संडे. उसके बाद क्या होगा 17 और 18 जून सैटरडे संडे. उसके बाद 24 और 25 जून एंड उसके बाद 1 और 2 जुलाई. इसीलिए देखो यहाँ पे 2 जुलाई को वो खत्म कर दे रहा है कहानी को. ठीक है. 2 जुलाई बीइंग द लास्ट डे ऑफ द सीजन विच वाज ऑन HR. ठीक है. फिर कह रहा है कि दे अरेंज प्रेजेंटेशन ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री एजेंडा ऑन एग्जैक्टली 5 days. इन्होंने क्या करा कि 5 दिन ऐसे थे जहां पे उन्होंने एक ही एजेंडा चलाया, मतलब एक ही प्रेजेंटेशन हुई है. ठीक है. 10 दिन में से 5 दिन ऐसे थे जहां पे सिंगल प्रेजेंटेशन हो रही है, यानी कि टोटल 5 प्रेजेंटेशन हो रही है. ठीक. यानी कि जो रिमेनिंग 11 प्रेजेंटेशन है वो रिमेनिंग 5 days में हुई है. ऐसा कुछ अपन फिगर आउट कर पा रहे हैं. ठीक है. On exactly 2 days, presentation were arranged on marketing and finance, but not on HR. 2 दिन ऐसे थे जहां पे मार्केटिंग और फाइनेंस की प्रेजेंटेशन हुई है पर HR की नहीं हुई. यानी कि 2 दिन ऐसे थे जहां पे दो प्रेजेंटेशन हुई हैं. ठीक है. यानी कि इसमें से अगर हम बात करें तो 2 दिनों में और मिल गए जहां पे दो प्रेजेंटेशन हुई, यानी कि 4 प्रेजेंटेशन का अपने को हिसाब किताब मिल गया है. अब रिमेनिंग क्या बच रहा है अपने को 7 प्रेजेंटेशन टू बी डन इन 3 days. ठीक है. Acha. The number of presentation arranged to marketing was more than that of HR, and it was at the same time it was more than that of finance. ठीक है. मार्केटिंग की जो प्रेजेंटेशन है वो क्या हो रहा है फाइनेंस से भी ज्यादा है. मार्केटिंग की जो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन है वो HR से भी ज्यादा है. ऐसा ये पॉइंट कहना चाह रहा है अपने को. ठीक है. अब है क्या थोड़ा यहाँ पे समझते हैं ना. देखो यहाँ पे अपने को क्या है 10 दिन और 16 प्रेजेंटेशन ये फिगर आउट करना है. ठीक है. अपने पास क्या है कि 5 और 5, 2 और 2 4, यानी कि रिमेनिंग 3 दिन में 7 का हिसाब किताब करना. और वो 7 कैसे हो सकता है 2 और 3 में ब्रेक हो सकता है. तो कैसे कर सकते हैं 2 और 3 में ब्रेक तभी पॉसिबल है जब किसी एक दिन 3 दे दें, है ना. इसमें से ऐसा कर दें एक 3 दे दें, एक 2 दे दें और एक 2 दे दें. ये पॉसिबल है. ठीक है. 3 3 1 दे सकते हैं क्या. 3 3 1 देने में दिक्कत क्या होगी ये वाला नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये तो नंबर को फ्रीज कर दिया ना. ये तो बोल दिया ना कि 5 ही दिन ऐसे हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली एक प्रेजेंटेशन हो रही है. तो यार 3 3 1 नहीं कर सकते और इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते. यानी कि यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड करा कि एक प्रेजेंटेशन 5 दिन हुई है, दो प्रेजेंटेशन
4 दिन हुई है, जिसमें से 2 दिन यहाँ निकले, 2 दिन यहाँ पे अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और 3 प्रेजेंटेशन 1 दिन हुई है, तो यानी कि 5 4 9 और 1 10 दिन, ये 10 दिन है। और प्रेजेंटेशन का बात करें तो कितना मिला, 5 प्रेजेंटेशन, 8 प्रेजेंटेशन और 3 प्रेजेंटेशन, यानी कि 16 प्रेजेंटेशन अपने को यहाँ पे ये हिसाब किताब मिल गया। थोड़ा सा मैंने नंबर क्रंचिंग कर ली। अब मेरे को क्या करना है, चीज़ों को अरेंज करना है। अब इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, टेक अनटेक वाला अप्रोच यूज करा, बिकॉज 2 वेरिएबल जब भी रहती है तो हम हमेशा उसी अप्रोच को यूज करते हैं। तो मैंने क्या करा, ये कर दिया, ठीक है। सिंस आई नो कि कोई 5 दिन है जहाँ पे अपने को एग्जैक्टली 1 प्रेजेंटेशन मिलने वाली है, ठीक है। 4 दिन है जहाँ पे अपने को 2 प्रेजेंटेशन मिलने वाली है, और 1 दिन है जहाँ पे अपने को 3 प्रेजेंटेशन मिलने वाली, ये मैंने पीछे फिगर आउट कर लिया था, ठीक है। लेट्स जंप टू द गिवन इंफॉर्मेशन पार्ट। और एक अपने को ये भी पता है जहाँ पे लिखा था कि मार्केटिंग एंड फाइनेंस के 2 दिन होंगे। ऑल्सो वी नो दिस की मार्केटिंग इज मोर देन फाइनेंस एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो मोर देन एचआर, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पीछे नोट की हुई थी। चलो लेट्स ट्राई टू ये वाला पार्ट, अनटिक टिक अनटिक वाला ये वाला चीज को करते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द आंसर्स। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द प्रेजेंटेशन। अच्छा पहले यहाँ से चलते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे भी अपने को बोला था कि पहले दिन और आखिरी दिन किसी को कर रहे हैं। The only presentation that was arranged on Saturday 3rd June and as well as on the 2nd July was to HR। अच्छा 3rd June को भी HR है एंड को भी HR है, यानी कि ठीक है। They arrange a presentation on exactly one of these days। ये तो हमने यहाँ से कर लिया था। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन वाला चीज भी हमने यहाँ से फिगर आउट कर लिया है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ऑन ऑल 3 एजेंडा वर अरेंज ऑन 24 जून। 24 जून को तीनों दिन तीनों प्रेजेंटेशन हुई है, ठीक है। यानी कि ये जो होना था ये हमने निकाल दिया। ये जो 1 दिन की प्रेजेंटेशन है ये हमारा डन है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने फिगर आउट कर लिया एंड इट हैज टू बी 24 जून वाला पार्ट। ऑन 17 जून प्रेजेंटेशन ऑन एचआर एज वेल एज फाइनेंस वाज अरेंज्ड। 17 जून को फाइनेंस और एचआर की प्रेजेंटेशन थी। फिर से पढ़ लेते हैं। 17 जून प्रेजेंटेशन ऑन एचआर एज वेल एज फाइनेंस। 17 जून को एचआर एज वेल एज फाइनेंस वाज अरेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मार्केटिंग ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मार्केटिंग करते तो तीनों हो जाता और हमें पता था कि 3 प्रेजेंटेशन किसी एक ही दिन होती है और वो हमने आइडेंटिफाई कर दी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 नोटेड। पॉइंट नंबर 2 नोटेड। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑन मार्केटिंग वाज नॉट अरेंज्ड ऑन 11 जून को प्रेजेंटेशन 11 जून को नहीं होती है, ठीक है। HR presentation was arranged on 18 June also। HR presentation was arranged on 18 June also। Also मतलब यहाँ पे कुछ और भी आने वाला है। Presentation on finance were never arranged on 2 consecutive calendar table। Presentation जो finance की है वो कभी भी 2 calendar table पे नहीं करी जा रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नोटेड। 5 है जो अपने को भी फिगर आउट थोड़ा हेल्प करना चाहिए। क्या करा जाए, अब ध्यान दो, तो मेरे पास 2 टिप है, एक तो 3 टिप है इनफैक्ट। ये वाला पार्ट कि हम वो 5 दिन निकालें, जिसमें से एक तो ये वाला दिन हो गया, एक दिन ये आ चुका है, ठीक है। हम ये 4 दिन में से एक दिन ये वाला निकल गया, ये आ गया 2 डे वाली प्रेजेंटेशन, ये 1 डे वाली आ गई है, ये 3 दिन वाली आ गई है, ये 1 डे वाली आ गई है, एक। अच्छा अपने पास मार्केटिंग के बारे में क्या पता है, इट हैज टू बी मोर देन फाइनेंस एंड मार्केटिंग हैज टू बी मोर देन क्या कहते हैं दिस एचआर, ठीक है। अब मार्केटिंग का ध्यान दो अगर, तो कितना है, 4 तो निकल चुका है, ठीक है। तो मार्केटिंग को या तो 6 दे सकते हैं या तो 5 दे सकते हैं। अगर मार्केटिंग को 6 देंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 10 का होना चाहिए, विच कैन बी डन इनटू 5 एंड 5, 16 प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, विच इन अ वे मेक सेंस। अगर 5 देते हैं तो पीछे प्रेजेंटेशन कितनी बची, 11, जिसके लिए मेरे को 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यार एक को इससे एक्सीड करना पड़ेगा। यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। यानी कि मार्केटिंग का मेरे को 6 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट फिर से समझाता हूँ। बेसिकली ये जो पॉइंट था जहाँ पे अपने को पता था कि मार्केटिंग हैज टू बी मोर देन फाइनेंस एंड एचआर, दोनों से ज्यादा प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ डेज की मार्केटिंग की होने वाली थी। अब मेरे को दिख रहा है मार्केटिंग की 4 तो हट चुकी है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन। जब 6 करूंगा तो रिमेनिंग 10 है। मार्केटिंग और मार्केटिंग को अगर 6 देता हूँ तो एचआर और फाइनेंस के लिए 10 बच रही है, तो 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर मार्केटिंग को मैं 5 लेता हूँ तो क्या होगा, रिमेनिंग 11, जिसमें से किसी एक को 6 देना पड़ेगा, किसी एक को 5 देना पड़ेगा, या 7 और 4, या कुछ ऐसा जिससे कि वो एक्सीड कर जाएगा मार्केटिंग से। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ से हमने फिगर आउट कर लिया इनके नंबर ऑफ डेज ऑल्सो, यानी कि मार्केटिंग की कितनी होने वाली है, 6 दिन, 5 दिन
और 5 दिन, यानी कि ये 6 5 11 5 16। ठीक। ऑल्सो ये भी मिल गया अपने को कि यहाँ पे ये ऐसा होने वाला है, ये 6 के 6 अपने को मिल गए। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो अनटिक हो जाएगा बिकॉज 3 वाला तो होगा नहीं, तो ये हो गया, तो यानी कि मार्केटिंग और एचआर वाला अपने को अभी तक नहीं मिला। अपने को मार्केटिंग एंड फाइनेंस वाला 2 मिलना बाकी था। अभी तक जो 2 मिले हैं वो कौन से मिले? फाइनेंस और एचआर और ये। अब जो 2 बचे हुए मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो मार्केटिंग और फाइनेंस के होने चाहिए थे। ठीक है। अब अपने पास एक पॉइंट है जो रिमेनिंग है, पॉइंट नंबर 5 बचा है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंस वर नेवर अरेंज्ड ऑन 2 कंसेक्यूटिव कैलेंडर। प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंस वर नेवर अरेंज्ड ऑन 2 कंसेक्यूटिव कैलेंडर। ठीक है। एचआर की कितनी प्रेजेंटेशन होनी थी? 5। 1 2 3 4 5 फिगर आउट हो गई है, तो यानी कि बाकी सबको अनटिक मार दिया जाए। अब देखो ये कितना आसान बनते जा रहा है ना। ठीक है। फाइनेंस की 5 होनी थी। ठीक है। फाइनेंस की जब 5 होनी थी तो अब एक तो यहाँ पे आ चुका है। इन 3 में से कोई एक देनी पड़ेगी या कोई 2 देना पड़ेगा, और इन दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। अपने को क्या बोला था कि प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंस वाज नेवर ऑन द कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेट्स, यानी कि बैक टू बैक किसी भी दिन नहीं हो रही है। यानी कि अगर 24 को हुई है तो 25 को नहीं कर सकते। अगर 25 को हुआ है तो 1 जुलाई को पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे ही अगर 17 को हुआ है तो 18 को नहीं कर सकते, ये दिख रहा था। यानी कि 24 की जगह पे ये कैंसिल कर दें। ठीक है। यानी कि 25 जून हैज टू बी एक दिन वाला प्रेजेंटेशन। अच्छा, 10 और 11 में से कोई एक दिन करना पड़ेगा। ठीक, कोई एक दिन में से अपने को यही दिन करना पड़ेगा। ऑल्सो 4 जून को ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 वाला मिल गया। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। इट हैज टू बी या तो ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट। ऑल्सो इधर अगर आ जाए तो यहाँ पे भी एक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक अपने को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। ठीक है। यानी कि ये जो 2 वाला पार्ट था मार्केटिंग और फाइनेंस वाला, वो कौन सा है? वो देखो, एक तो ये वाला दिन है। ठीक है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, और एक ये 4 जून वाला दिन है। यानी कि 2 2 वाले कितने निकालने थे? 4 दिन निकालने थे, तो 2 2 2 2। ठीक है। यानी कि जो बचे हुए दिन है वो कौन से होने चाहिए थे? एक और एक वाले। यानी कि यहाँ पे नो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए। ठीक है। अब आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट वाला सेट, क्योंकि ऐसा एक सिमिलर सेट मैंने पहले कर रखा है, तो आई नो कि ये सेट का अप्रोच कैसे होना चाहिए था। मतलब ऑल एंड ऑल दिस इज अ न्यू थिंग जो कि इस प्लेलिस्ट में जा रही होगी, बिकॉज इसके पहले हमने कभी भी इस अप्रोच से किसी सेट को सॉल्व नहीं करा हुआ जहाँ पे हमने टोटल सम पे पूरी गेम चलाई हो। बेसिकली था तो ये अरेंजमेंट विद द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में 1 पूछा हुआ है, हाउ मेनी डेज डिड किप्रो कंसल्टिंग अरेंज एग्जैक्टली 2 प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली 2 प्रेजेंटेशन तो हमने यहाँ पे निकाल रखा था। एग्जैक्टली 2 प्रेजेंटेशन कितना? 4 दिन है। ठीक है। हाउ मेनी प्रेजेंटेशन वर अरेंज इन मार्केटिंग इन द गिवन डेज। तो मार्केटिंग के लिए कितना निकला था अपने को? 6 दिन निकला था। तो मार्केटिंग के लिए इट हैज टू बी 6 डेज। ठीक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ओनली वन प्रेजेंटेशन वाज अरेंज्ड एंड दैट टू ऑन फाइनेंस। 10 11 25 17। 10 को मार्केटिंग का, 11 को है। ठीक है। 25 और 17 भी चेक कर लेते। 25 को नहीं है, 17 जून को भी चेक कर लेते, नहीं है। ओनली पूछा था बिकॉज अपने को क्या बोला था? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ओनली वन प्रेजेंटेशन, तो ओनली वन प्रेजेंटेशन 11 जून को। यहाँ पे देख सकते हो 11 जून को अपने को दिख रहा है। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेट्स कंटेन बोथ डेट ऑन विच अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस वाज नॉट अरेंज्ड। 11th एंड 17th। 11th और 17 को फाइनेंस नहीं है, 11th को है। ठीक है, खत्म, चेक करने का कोई मतलब नहीं है। 10th जून एंड 1 जुलाई। 10th जून को फाइनेंस नहीं है, 1 जुलाई को है। ठीक है। 10th जून एंड 18 जून। 10th जून को नहीं है, 18 जून को भी नहीं है। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। 3rd जून एंड 24 जून। 3rd जून को नहीं है, 24 जून को देखो फाइनेंस है। तो यानी कि क्लियर कट आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट गिव द शेड्यूल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन 10 जून। 10 जून को क्या होने वाला है? 10 जून को एक प्रेजेंटेशन हो रही है एंड दैट इज ओनली ऑन मार्केटिंग, यानी कि ओनली मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो मॉडरेट सेट एंड लर्निंग के हिसाब से एक नई चीज है जो कि आपको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस अप्रोच से ऐसा सेट कभी भी ट्राई नहीं किया हो। ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।